ডবল ইঞ্জিনের সরকারের কথা বলে ডবল গোলামি সরকার চলছে আসামে, এমন মন্তব্য প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর। डबल इंजन की सरकार चलाएंगे, लेकिन इन्होंने डबल गुलामी की सरकार चलाई है। মোদি আমেরিকার গোলাম, দেশবাসীকেও গোলাম বানিয়ে রাখার ধাঁচেই চলছে শাসন ব্যবস্থা। আসামের শাসন ব্যবস্থা নিয়ে সমালোচনা করতে গিয়ে বললেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তনয়া তথা ওয়ার্নারের সংসদ সদস্য প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভদ্রা। मोदी जी अमेरिका के गुलाम बन गए हैं और उनकी नीतियों की वजह से आज पूरा देश संकट में है और हेमंत जी मोदी जी के गुलाम हैं। আসামে নির্বাচনী প্রচার অভিযান থেকে ডবল ইঞ্জিনের সরকারকে তীর্যক কটাক্ষ করলেন প্রিয়াঙ্কা। একই দিনে মোদি প্রিয়াঙ্কা নির্বাচনী মহড়া ঘিরে সরগরম আসামের রাজনীতি। নাজিরার বিশাল জনসভা থেকে মোদি হিমন্তকে বিঁধলেন প্রিয়াঙ্কা। বিভিন্ন সরকারি সুবিধায় নাম ডিলিটের ভয়ভীতি দেখিয়ে মোদি শাহের সভায় লোক ভিড়ানোর অভিযোগ। আসামে ভয়ভীতি রাজনীতির বিরুদ্ধে মানুষ গণতান্ত্রিকভাবে এবার মত প্রকাশ করবেন বলে দাবি প্রিয়াঙ্কার। কংগ্রেস ক্ষমতায় আসলে সরকারি সুবিধার জন্য সভা র্যালিতে গিয়ে তালি বাজাতে হবে না, মন্তব্য প্রিয়াঙ্কার। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা এবং বিভাজনের অভিযোগ তুলে বর্তমান সরকারকে সমালোচনা করেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভদ্রা। মহাপুরুষদের পুণ্যভূমি আসাম একটা সময় ঐক্য এবং সম্প্রীতির মিলন ক্ষেত্র ছিল, কিন্তু বিজেপি সরকার আসার পর আসাম তার ঐক্য সম্প্রীতির রূপ বদলে এক ভয়ার্ত পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। আজ নগাঁও নাজিরা বিধানসভা আসনে এক প্রচার অভিযানে যোগ দিয়ে মন্তব্য রাখতে গিয়ে এমনটাই বললেন কংগ্রেসের আসাম বিধানসভা ভোটের ইনচার্জ তথা ওয়েনারের সাংসদ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কন্যা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভদ্রা। আসামের ডবল ইঞ্জিনের সরকারকে তীর্যক কটাক্ষ করে প্রিয়াঙ্কা বলেন, মোদিজি আমেরিকার গোলামি করছেন। মোদি ও হিমন্ত সরকারের নামে আসামে ডবল গোলামির সরকার চলছে। বিভিন্ন সরকারি সুবিধায় নাম কেটে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে মোদি শাহের সভায় লোক ভিড়ানো হয় বলে অভিযোগ তুলেছেন প্রিয়াঙ্কা। হিমন্ত সরকারের আমলে জমি কেলেঙ্কারি, মাফিয়ারাজ এবং সিন্ডিকেটের সুদিন চলছে। গুয়াহাটি মহানগরীকে স্মার্ট সিটি করার নামে কেলেঙ্কারি, পাহাড়ের উন্নয়নের নামেও কেলেঙ্কারি চলছে বলে মন্তব্য করে ক্ষমতাসীন হিমন্ত সরকারকে রীতিমতো তরজা ঠোকেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। বিজেপি সরকার আসামবাসীর প্রাণের শিল্পী জুবিন মামলার আসামিদের অ্যাকাউন্ট বা সম্পত্তি সুরক্ষিত রেখেছে। ন্যায় বিলম্ব করা হচ্ছে, ভোট মিটলে ন্যায় ভুলে যেতে হবে দাবি প্রিয়াঙ্কার। কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার 100 দিনের মধ্যে জুবিন মামলার ন্যায় পাইয়ে দেওয়া হবে, আসামবাসীকে আশ্বস্ত করলেন রাজীব তনয়া প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভদ্রা। নাজিরার বিশাল জনসভায় প্রিয়াঙ্কা ছাড়াও জনসভাকে আশ্বস্ত করে বক্তব্য রাখেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গৌরব গগৈ, বিধায়নী দলনেতা দেবব্রত শইকিয়া, মহাজোট সঙ্গী অখিল গগৈ সহ আরো অন্যান্যরাও। डबल इंजन की सरकार चलाएंगे, लेकिन इन्होंने डबल गुलामी की सरकार चलाई है। मोदी जी अमेरिका के गुलाम बन गए हैं और उनकी नीतियों की वजह से आज पूरा देश संकट में है और हेमंत जी मोदी जी के गुलाम हैं और ऊपर से ये चाहते हैं कि ये डबल गुलामी की सरकार इस असम के सुंदर प्रदेश और स्वाभिमानी प्रदेश की जनता को गुलाम बना दे, दबा कर रखे। आप सर उठाओ अपना, सीना तानो अपना और मन बनाओ कि जो नई सरकार आएगी उसके साथ एक नया असम आएगा, आपका असम, वो असम जो जुबिन गर्ग जी का सपना था, वो असम जो आपके दिलों में है, वो असम जो आप सबका सपना है, जिसमें आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल बने, जिसमें ये भ्रष्टाचार बंद हो, जिसमें आपके बच्चे स्वाभिमान से खड़े होकर कह सके हम असम के हैं, हमने ये प्रदेश बनाया है, हमें रोजगार असम में मिलता है, जिसमें आपकी हमारी बहनें खड़ी होकर ये कह सके कि हाँ कोई हमें पूछ रहा है, अपने प्रदेश में हम सुरक्षित हैं, हमें रोजगार मिलता है, हमें सही वेतन मिलता है। तो अगर आप एक ऐसा असम चाहते हैं तो आप कांग्रेस की सरकार चुनिए। हमारी कुछ गारंटी है। हमारी पहली गारंटी है कि महिलाओं के लिए, आपके व्यवसाय के लिए, मतलब आप अगर कोई छोटा काम बिजनेस शुरू करना चाहती है, आपको 50,000 रुपए दिए जाएंगे। जो भी स्कीम हम लाएंगे महिलाओं के लिए, उसका सीधा कैश का ट्रांसफर महिलाओं के खाते में, बैंक के खाते में जाएगा। 25 लाख तक आपको स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, मतलब आपको कोई भी बीमारी हो, कितना भी इलाज करना हो, 25 लाख
रुपए तक मुफ्त इलाज सरकार कराएगी। ये कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में करके दिखाया। आप राजस्थान में पूछिए, दवाई, इलाज, कैंसर का इलाज, हार्ट की सर्जरी सारा मुफ्त मिल रहा था 25 लाख तक। इसका मतलब है कि जब कोई बीमार पड़ता है, घर में कोई बीमारी होती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार मदद देगी, क्योंकि आपके पैसे हैं, सरकार समझती है और सरकार आपके हाथों में वो पैसे वापस डालेगी। कांग्रेस की सरकार चाहती है कि जुबिन गर्ग जी को न्याय मिले। 100 दिन के अंदर अंदर हमारी सरकार जैसे बनेगी, हम 100 दिन के अंदर अंदर उनको न्याय दिलवाएंगे। आज तमाम स्थानीय भूमिपुत्रों को टेम्परेरी पट्टा मिला है। हम टेम्परेरी से परमानेंट पट्टा देंगे 10 लाख स्थानीय भूमिपुत्रों को। और प्रदेश के जितने भी बुजुर्ग भाई बहन हैं, उनको हर महीने 1250 रुपए की सहायता दिलवाई जाएगी। देखिए, जब भ्रष्टाचार होता है तो हम सब भ्रष्टाचार की बात करते हैं। और एक चीज है, आपको भी समझ होगी, आपके ही इलाके में जब आप देखते हो कि अचानक नेता के पास बहुत पैसे हो गए हैं, जमीन खरीद रहा है, बड़ा घर बन रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ी लेके चल रहा है, ठीक है, आप सोचते हो कि भ्रष्ट है। लेकिन इस भ्रष्टाचार का असर आपके जीवन पर क्या है, कभी आपने सोचा है? सिर्फ ये बात नहीं है कि एक आदमी, एक नेता फूल रहा है, फल रहा है, खूब बड़ा बन रहा है, उसके महल बंगले बन रहे हैं, उसकी गाड़ियां बन रही हैं, उसके बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं, जमीन बटोर रहा है। ये तो एक बात है। सबसे बड़ी बात क्या होती है भ्रष्टाचार से? सबसे बड़ी बात यह होती है कि आपका पैसा छीना जाता है। आपका पैसा मतलब जो सरकार का पैसा आपके हाथों में होना चाहिए, जो आपका है, आपकी स्कीमों के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपके जो सरकारी विद्यालय हैं उसमें डालने के लिए, आपके नौजवान बच्चों के लिए कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, आपके अस्पतालों को बनाने के लिए, आपकी सड़कों को बनाने के लिए, आपके नलकों को बनाने के लिए, ये सब आपका पैसा होता है। सरकार की पूंजी होती है कि आपके लिए इस्तेमाल किया जाए। तो जब आप देखते हैं कि आपका मुख्यमंत्री, उनका परिवार इतना भ्रष्ट हो गया है, हद से ज्यादा, तो आपको सबसे पहले ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये आपका पैसा है जिससे ये महल बन रहे हैं, ये आपका पैसा है जिससे ये जमीन बटोरी जा रही है, ये आपके उद्योग हैं जो बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी जा रही हैं मुफ्त में, ये आपकी सड़कें हैं, आपकी पाठशालाएं हैं, ये आपके स्वास्थ्य की इमारतें हैं जो नहीं बन रही हैं क्योंकि इनके महल बन रहे हैं, क्योंकि इनके परिवार फूल रहे हैं, फल रहे हैं। तो अब चुनाव आ रहा है 9 तारीख को, आप क्या करेंगे बताइए? आप एकदम पूरा ध्यान, अपना पूरा ध्यान अपने ही जीवन पर, अपने संघर्ष पर, अपने संकटों पर, आप जो महंगाई का सामना करते हो, आप जो बेरोजगार बैठे हो, जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए संघर्ष करते हो लेकिन बच्चों को नौकरी नहीं मिलती, आप जो चाय के बागान में अपने हाथों को पत्थर बनाती हो लेकिन आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आपकी सुरक्षा तक नहीं मिलती, आप इसके बारे में सोचो। जब वो वोट डालने जाओगी तो ये सोचो कि मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे ये सरकार क्या देगी? क्या मुझे डराया जाएगा, मुझे धमकाया जाएगा, मुझे खदेड़ा जाएगा, मुझे घसीटा जाएगा रैलियों में, राजनीतिक प्रोग्रामों में, या मुझे स्वतंत्रता मिलेगी, या मेरे बच्चों का भविष्य बनेगा, या मुझे गौरव गोगोई जी, देवव्रत सैकिया जी जैसे नेता मिलेंगे जो ईमानदारी से मेरे लिए काम करेंगे, या भ्रष्ट नेता मिलेंगे भाजपा के नेताओं की तरह जो सिर्फ अपना स्वार्थ साधेंगे और मुझे छोड़ देंगे? ये सोचिए, ध्यान से सोचिए,
और इस चुनाव में अपना एक एक वोट अपने लिए डालिए, अपने असम के लिए,